Yes, students, we are doing chapter devotional path, and our today's topic is about Nathpanthis, Siddhas, and Yogis. Nathpanthis, Siddhas, and Yogis advocated renunciation of the world. For them to achieve the path of salvation, they taught people uh, the path of meditation. If you want to attain salvation, they taught the path of meditation. And for this, they advocated practices. For meditation, they they taught various practices. अब वो कौन कौन सी उन्होंने practices बताई? Now listen. Yogasans, breathing exercises, and meditation. These groups popular among low caste because members of these groups were from low caste. So Nathpanthis, Siddhas and Yogis became popular among low caste people also. Nathpanthis, Siddhas and Yogis, they taught various methods to attain salvation. कौन कौन से methods उन्होंने बताए? They advocated breathing exercises, meditation, and yoga asanas to attain salvation. And these groups were popular among low caste people also because their members were from low caste. So next is about Sufis, Islam and Sufism. Islam and Sufism. Now listen, Islam and Sufis कौन होते थे? Sufis were Muslim mystics and they laid stress on love and devotion towards God, and they propagated the strict method, strict submission to one God. इन्होंने भी इसी बात को प्रीच किया, वन गॉड का मेथड इन्होंने भी प्रीच किया, डिवोशन टुवर्ड्स वन गॉड. They also taught, they believed in one God, and these Sufis, they laid stress, emphasized love and devotion to one God, and they propagated submission to one God. In 8th and 19th centuries, religious scholars developed different aspects of holy law, Shariat. Holy law, Shariat. Shariat क्या है? Theology of Islam. Holy law, Shariat. Sunni and Shariat Muslims होते हैं. And Sufis often rejected rituals. ये भी rituals में believe as saints. Sufis, हम मुस्लिम्स के जो होते हैं ना, उनको हम सूफीज कहते हैं. तो हमने जब नॉर्थ इंडिया के इधर अपने पढ़े थे, तो जैसे हमने महाराष्ट्र के पढ़े थे, हम उनको सेंट्स बोल रहे थे. मुस्लिम्स के ये जो सेंट्स है, इन्हीं को ही मैं सूफीज बोल रही हूँ. They rejected elaborated rituals. They did not believe in ritualism. They rejected elaborated rituals and they believed in equality. Sufis believed in equality. They composed poems and expressed their feelings and a rich literature in prose.
सूफीज एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स थ्रू पोएम्स, इन्होंने पोएम्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, एंड थ्रू लिटरेचर इन प्रोज. नो, व्हाट्स प्रोज? ऑर्डिनरी फॉर्म. ऑर्डिनरी फॉर्म में इन्होंने सब कुछ रिप्रेजेंट किया, डिफिकल्ट वे से नहीं, सब कुछ ऑर्डिनरी वे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया. सूफीज एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू पोएम्स एंड थ्रू लिटरेचर इन ऑर्डिनरी फॉर्म. सूफीज जो थे ना, ये भी रिचुअलिज्म के अगेंस्ट थे, एंड दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी, एंड दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. किस वे से एक्सप्रेस की थी इन्होंने? थ्रू पोएम्स and through literature in prose in ordinary form. अब क्या क्या आता था? Including anecdotes. Anecdotes means short interesting stories. क्या क्या आता था इनके लिटरेचर में? Anecdotes. Anecdotes means short interesting stories and fables, story with animal characters. They express their feelings through poems, anecdotes, interesting stories, short stories, fables, stories with animal character in ordinary form. Ordinary form में सब कुछ इन्होंने represent किया. Among the great Sufis of Central Asia, अब मैं कुछ सूफीज के नाम बोलूंगी. Great Sufis of Central Asia. Now listen their names: Ghazali, Rumi, and Sadi. Ghazali, Rumi, and Sadi. These were Sufi saints. The important Sufi of Central Asia. कौन कौन है? Ghazali, Rumi, and Sadi. These were the important Sufis of Central Asia. Ghazali, Rumi, and Sadi. Like Nathpanthis, Siddhas, and Yogis, they believed in that heart can be trained to look at world in different way. They developed elaborated methods of training using. अब क्या क्या methods इन्होंने adopt किए for training? जिक्र, भगवान के नाम को लेना, चैंटिंग ऑफ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला. जिक्र. कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए? जिक्र. फर्स्ट ऑफ ऑल सूफीज ने अपने आइडियाज कैसे एक्सप्रेस किए? थ्रू पोएम्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म्स या एनेक्डोट्स, शॉर्ट स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, थ्रू फेबल्स, स्टोरीज विद एनिमल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा. दे एक्सप्रेस देयर व्यूज. फिर मैंने बताया इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, उनके नाम आपको याद रखने हैं: रूमी, सादी एंड गजाली. दीज वर द इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स. कहाँ के? सेंट्रल एशिया के. अब नाथपंथीज एंड सिद्धा योगीज की तरह ये भी लोग क्या कहते थे? इन्होंने भी मेथड्स बताए कि हाउ टू, कैसे भगवान को हम याद कर सकते हैं. सबसे पहले तो उन्होंने बताया जिक्र, तो उसके नाम को बार बार अपने मन अपने हम रिपीट करें. आपने किसी को देखा होगा, कई बार भगवान का नाम लेते हैं लोग, जैसे आप ओम ओम बोलते रहते हैं, है ना, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते रहते हैं. तो ये लोग भी ऐसे ही कहीं एक जगह बैठ के भगवान के नाम को बार बार लेते रहना. तो इस वजह से एक तो जिक्र इन्होंने बताया. नेक्स्ट, कंटेम्पलेशन, लुकिंग थॉटफुली. फिर इन्होंने सिंगिंग के रूप में, जैसे कवालियां गानी, ये लोग कवालियों के रूप में. हम लोग सिखिज्म में शब्द, हिंदुइज्म में भजन, ये लोग कवालियां गाते हैं. ठीक है. सिंगिंग, डांसिंग. आपने कभी देखा होगा कवाली के साथ ये लोग कई बार डांस भी करते हैं, देखा है ना. तो डांसिंग की फॉर्म में भी, उस फॉर्म में भी ये लोग कहते हैं सिंगिंग, डांसिंग से भी भगवान को हम याद कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं थ्रू कवालीज. ठीक है. मैंने बताया ना, जैसे सिखिज्म में शब्द है, शब्द बोलते हैं, हिंदुइज्म में भजन, और यहाँ पे भजन के साथ कई बार आपने डांस करते भी देखा होगा हिंदुइज्म में भी, है ना. तो इधर भी
कव्वाली के साथ कई बार ये लोग डांसिंग से भी भगवान को याद करते हैं, थ्रू सिंगिंग एंड थ्रू डांसिंग, और साथ में जिक्र, कई बार उसका नाम ही बोलते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह, जो भी इनके होते हैं ना। तो डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, स्पिरिचुअल लेसन जो होते हैं, ब्रीथ कंट्रोल, इन्होंने भी ये सब कुछ बताया कि कैसे उसको याद करें। ब्रीथ को कंट्रोल, नाथपंथी सिद्धा योगीज भी तो यही कहते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो भी तो बताते थे, इन्होंने भी सब कुछ उन्हीं की तरह थे, नाथपंथीज एंड सिद्धा योगीज की तरह ही थे, इन्होंने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को इंपॉर्टेंस दी। एंड बट इन्होंने एक बात बोली कि ये सब कुछ जो भी है ना, डू अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। इन्होंने कहा जो भी ये करना है ना, जैसे आप जिक्र या फिर आप सिंगिंग, डांसिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भी है, वो कहते हैं कि डू अंडर द गाइडेंस ऑफ पीर। पीर, पीर जैसे वर्ड सुना हुआ ना, पीर, अब पीरों पे लोग जाते हैं ना माथा टेकने, वही अंडर द गाइडेंस ऑफ पीर। तो 10 इमर्ज्ड, इससे क्या हुआ, इमर्ज्ड सिलसिला, अ स्पिरिचुअल family of Sufi teachers, spiritual genealogy of family of Sufi teachers। अब मैं कुछ ये सिलसिलास बोलूंगी, जैसे सोहारवर्दी है सिलसिला, अब यहाँ पे इन्होंने एक सिलसिला बताया हुआ है। इन कश्मीर ऋषि ऑर्डर ऑफ, इन कश्मीर ऋषि ऑर्डर of Sufism flourished in 15th and 16th centuries. This order was established by Sheikh Nuruddin in 15th. This is given in the box on page number 111. आप बॉक्स देखो, बॉक्स में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। In Kashmir, Rishi order of Sufism flourished. Which order of Sufism flourished in Kashmir? Rishi order. In 15th and 16th century. अब ये order क्या था? This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nand Rishi, and had deep impact on the life of the people in Kashmir. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. Which order was established in Kashmir? Rishi order. Who established this Rishi order? Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nand Rishi. तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर, आपको कश्मीर का ये लर्न करना है। इन कश्मीर ऋषि ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नूरुद्दीन वाली, and various shrines were have been built in Kashmir. इन सूफीज की बहुत सी shrines बनी हुई हैं वहां पे कश्मीर में। तो सूफीज वर जस्ट लाइक नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। आपने पहले पढ़े नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। ये लोग कैसे थे? दे डिड नॉट बिलीव इन रिचुअलिज्म, दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी। इन्होंने कौन से आइडियाज को एडवोकेट किया टू अटेन साल्वेशन? इन्होंने कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगासन करो, है ना, ये वाली चीजें इन्होंने बताई ना नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज ने। योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर मेडिटेशन। इन्होंने कहा अगर भगवान को पाना है तो डू दीज एक्सरसाइजेस। ठीक, नेक्स्ट आ गए सूफीज। सूफीज कौन थे? मुस्लिम मिस्टिक्स। अब ये लोग क्या कहते थे? ये भी किसमें बिलीव नहीं करते थे? रिचुअलिज्म, इलेबोरेटेड रिचुअलिज्म में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे ये लोग भी। इन्होंने भी इक्वालिटी को ही प्रीच किया, दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी। नाथपंथीज भी इक्वालिटी में बिलीव करते थे क्योंकि उनके तो मेंबर्स ही लो कास्ट के थे, तो वो कास्ट में बिलीव नहीं करते थे, डिडंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो सूफीज भी सेम ही थे, ठीक है। ये सिर्फ मुस्लिम सेंट कह लो ना, उन्हीं को हम सूफीज कह रहे हैं। तो सूफीज भी इलेबोरेटेड रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे। सूफीज बिलीव्ड इन इक्वालिटी। ये लोग किसमें बिलीव करते थे? इक्वालिटी, लाइक नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज। दे एडवोकेटेड
द मेथड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और कौन कौन से इन्होंने मेथड बताए, जिक्र, फिर इन्होंने डांसिंग, सिंगिंग, यहाँ पे इन्होंने डांसिंग को लिखा हुआ है राक्स, एंड सिंगिंग को समा। समा एंड राग अगर वर्ड आ जाए तो आपने समा के लिए क्या लिखना है, सिंगिंग, राग्स के लिए क्या लिखना है, डांसिंग। दे टॉट दीज मेथड्स। और साथ में एक बात बोली कि अगर ये आप कुछ भी करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तो पर्सन शुड डू दीज थिंग्स अंडर द गाइडेंस ऑफ पीर, पीर की गाइडेंस में करना चाहिए, ठीक है, या फिर मास्टर, जो भी। अब इन्होंने क्या किया, दस इमर्स द सिलसिलास, तो सिलसिला स्टार्ट हो गए। अब मैंने कश्मीर का बोला है, एक ऑर्डर सेटअप हुआ था इन कश्मीर, दैट वाज ऋषि ऑर्डर, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नूरुद्दीन वाली, नूरुद्दीन वाली। तो अभी आपने, हाँ जैसे वो होते हैं। नेक्स्ट इज, अब आगे लार्ज, आप मुझे पहले बताओ फ्यू नेम ऑफ फ्यू सूफी सेंट्स, गजाली, रूमी, सादी, गजाली, रूमी एंड सादी। अगर आपको पूछा जाए सूफी सेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्वेश्चन आ जाए, राइट अबाउट नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज, तो कैन यू राइट, आप बता सकते हो ना, नाथपंथी सिद्धास योगीज जो थे वो रिचुअलिज्म में बिलीव, कास्ट सिस्टम में बिलीव, बिकॉज उनके खुद के ही मेंबर्स कौन थे, लो कास्ट। और कौन से मेथड्स इन्होंने बताए फॉर टू अटेन साल्वेशन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड योगासन। ये नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज का। अगर आपको आ जाए सूफीज, तो आपने कहना है कौन है सूफीज, मुस्लिम मिस्टेक्स। फिर आपने क्या बताना है कि ये लोग जो थे ये भी रिचुअलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ये भी इक्वालिटी में बिलीव करते थे। लाइक नाथपंथी सिद्धा योगीज, दे आल्सो एडवोकेटेड द मेथड्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सिंगिंग, डांसिंग, और क्या बताया इन्होंने, जिक्र। और साथ में एक बात बताई कि अगर किसी को ये करना है तो पर्सन शुड डू अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर। तो ऐसे थे सूफीज। और साथ में आपको बताना है, अगर 1 मार्क में मैम पूछ ले, नेम सम सूफीज, सूफीज, गजाली, रूमी, सादी ऑफ सेंट्रल एशिया। तो फ्रॉम दिस इमर्ज्ड सिलसिला, आपको मैं पूछूं कि विच ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर, ऋषि ऑर्डर, हु एस्टैब्लिश्ड ऋषि ऑर्डर, नूरुद्दीन वाली। तो इतना अभी हमने किया है। नेक्स्ट इज, अब क्या हुआ, सूफीज्म का ही हम करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब सूफीज कहाँ पे सेटअप हो गए, हिंदुस्तान में, है ना, इन सेंट्रल एशिया, सेटल्ड इन हिंदुस्तान from 11th century. अब major Sufi centers developed over the subcontinent. अब सुनो, the Chishti silsila was among the most important order. चिश्ती, सुहार, वर्दी, ये सिलसिलाज हैं सारे। जैसे अभी मैंने एक कश्मीर का बोला था, विच ऑर्डर, ऋषि ऑर्डर। अब मैं बोल रही हूँ चिश्ती, चिश्ती सिलसिला वाज इंपॉर्टेंट सिलसिला। अब क्या था इसमें, इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स। अब मैं चिश्ती सिलसिला के बारे में बोल रही हूँ। इट हैड लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक, नो लिसन द नेम ऑफ द, इनके जो सूफीज थे उनके नाम सुनो, ख्वाजा महीउद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, ख्वाजा महीउद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब। ये सब चिश्ती सिलसिला के हैं। चिश्ती सिलसिला के मैं टीचर्स के नाम बोल रही हूँ, नो लिसन केयरफुली। चिश्ती सिलसिला के मुस्लिम टीचर्स जो थे, फर्स्ट इज ख्वाजा महीउद्दीन चिश्ती, कहाँ पे, अजमेर। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कहाँ पे, दिल्ली में। बाबा फरीद पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, एंड बंदा नवाज गिसुरुराज ऑफ गुलबर्गा। तो लर्न दीज द नेम ऑफ दीज टीचर्स। जैसे आपको पूछा जाए कि ख्वाजा महीउद्दीन चिश्ती, ये दरगाह कहाँ पे है, महीउद्दीन चिश्ती की कहाँ पे है, अजमेर। बाबा फरीद कहाँ के थे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली।
निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, बख्तियार काकी दिल्ली। दिल्ली के लिए दो याद रखो, बख्तियार काकी एंड निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद पंजाब। तो लर्न द नेम ऑफ दीज टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला। मैंने बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सूफीज जो थे ना, सेंट्रल एशिया के जितने भी सूफीज थे नो, दे स्टार्टेड सेटिंग अप इन हिंदुस्तान, सब कॉन्टिनेंट में आ गई, ठीक है। एंड इधर उन्होंने जो उनका इम्पोर्टेंट उन दिनों बहुत से सिलसिलास थे, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलसिला ऑफ दोज डेज वाज चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के कुछ टीचर्स मैंने बोले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कि चिश्ती के अजमेर का बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा फरीद पंजाब, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, फिर बख्तियार काकी दिल्ली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली। तो लर्न द नेम ऑफ दीज चिश्ती टीचर्स। चिश्ती सिलसिला के कुछ टीचर्स हैं। सूफी मास्टर्स जो होते थे ना, दे हेल्ड देयर असेंबलीज। अब एक मिनट, आप सत्संग पे जाते हो, वहां पे जो गुरु होते हैं वो करवाते हैं ना पाठ, सेम एज ये भी तो करवाते होंगे इनके मास्टर्स। सूफीज मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज in their khankas or hospices. सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज कहाँ पे करवाते थे, या तो खनकास और हॉस्पर्स। डिवोटीज ऑफ ऑल डॉक्ट्राइन्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी, नोबिलिटी, ऑर्डिनरी पीपल, वो सब खनकास जाते थे। इट मीन्स खनकास में हर तरह के लोग जाते थे, नोबल फैमिलीज के भी, रॉयल फैमिलीज के भी, ऑर्डिनरी पीपल भी, दे अटेंडेड दीज असेंबलीज। सूफी सेंट्स जो थे ना, सूफी मास्टर्स जो थे ना, दे अटेंडेड देयर असेंबलीज। कहाँ पे करते थे, हेल्ड देयर असेंबलीज कहाँ पे करते थे, खनकास में या हॉस्पर्स में। और पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिली, नोबल क्लास या फिर ऑर्डिनरी पीपल, दे अटेंडेड दीज असेंबलीज। अभी लोग नकोदर जाते हैं ना माथा टेकने, हर तरह के लोग जाते हैं, रिच पुअर हर कोई जाता है वहां पे, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा, हर कोई जाता है। तो सेम है सूफी टीचर्स तब, अब वहां पे है कोई, है ना उनके अभी, उनके वहां पे अभी भी हैं कोई सूफी वहां पे सेंट होंगे अभी एट प्रेजेंट, है ना। मुराद शाह थे जब पहले, अब वो नहीं है तो कोई और है, उन्हें पता नहीं, है ना, जो भी। तो सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज कहाँ पे करते थे, खनकाज या हॉस्पर्स में। कहाँ पे करते थे, खनकाज और हॉस्पर्स। अब असेंबलीज वर अटेंडेड बाय, सब लोग अटेंड करते थे, मे बी रिच मे बी पुअर, हर तरह के लोग उन असेंबलीज को अटेंड करते थे। और यहाँ पे वो क्या डिस्कस करते थे, एक मिनट, आप सत्संग जाते हो क्या डिस्कस करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स ही होते होंगे, भगवान का नाम ही लेते होंगे, सेम एज देयर। वहां पे अपने आप बताओ ना वो क्या डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स, दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स। क्यों, किसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, सेम अपने गॉड की, है ना। क्या करते हैं उस असेंबलीज में, वो क्या करते थे बताओ। सूफीज हेल्ड देयर असेंबलीज कहाँ पे, खनकाज और हॉस्पर्स। दीज असेंबलीज वर अटेंडेड बाय पीपल ऑफ रॉयल फैमिली, नोबल क्लास और फिर ऑर्डिनरी पीपल। अब यहाँ पे वो क्या डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स, अभी भी वो यही करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स, टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स and in solving the worldly problems, and or simply attended the music and dance sessions। कई बार लोग म्यूजिक अटेंड करने जाते हैं, वहाँ पे म्यूजिक या जैसे कवालियां बोलते हैं वहाँ पे लोग वो भी सुनने जाते हैं। हम नहीं जाते शब्द सुनने गुरुद्वारे, हम नहीं जाते भजन सुनने मंदिर, वो लोग भी जाते हैं। म्यूजिक एंड डांस सेशंस को भी अटेंड करने जाते हैं कई बार लोग। कई बार वहां पे स्पिरिचुअल मैटर्स होते हैं, कई बार हम सिमरन को अटेंड करते हैं, सिमरन साधना को अटेंड करते हैं, कई बार हम उनके विचार चल रहे होते हैं गुरुद्वारे में या मंदिर में, वो अपने विचार दे रहे होते हैं, हम उनको सुनते हैं। और कई बार हम वहां पे शब्द सुनने के लिए ही चले जाते हैं, वैसे ही सेम एज देयर, ठीक है।
सूफीज जो थे ना, सूफी मास्टर्स, दे हेल्ड देयर असेंबलीज कहाँ पे, खनकाज और हॉस्पस में करते थे। सब तरह के लोग जाते थे और वहां पे वो क्या डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स। किस बात के लिए, किसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, सेंट्स की। और कई बार लोग क्यों जाते थे, अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस। कई बार म्यूजिक एंड डांस सेशंस को ही अटेंड करने के लिए लोग वहां चले जाते थे। अब often people see सूफी मास्टर्स विद, आपने कभी भी इनको हमेशा नोट करो, ये कई बार ना कुछ ऐसा मिरेकुलस पावर्स होती हैं इनके पास, मैजिक करते हैं कई बार, देखा है कई बार ये अपनी, कई बार ऐसी पावर्स हैं इनके पास, सूफीज के पास मिरेकुलस पावर्स हैं इनके पास। कई बार आपने देखा होगा ऐसी पावर्स, ये कई बार जादुई ताकतें अपनी दिखाते हैं, होती हैं इनके पास, ठीक है। मिरेकुलस पावर्स के साथ इनको देखा होगा आपने। किस बात के लिए, किसी की इलनेस को ठीक करने के लिए। आप जाओ तो ये ना कई बार ऐसे, अब मैं उसको क्या बोलूं, कई बार किसी बंदे का ऐसे झाड़ा कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे दरगाह में देखो, है ना, करते हैं ना, तो वही मैं बोल रही हूँ, वो किसी की इलनेस को ठीक करने के लिए। कई इनके पास कहते हैं मिरेकुलस पावर्स होती हैं इन सूफीज के पास। कई बार हम लोगों ने देखा होगा इनको, आपने भी देखा होगा ऐसी पावर्स हैं। तो ये किसके लिए यूज करते हैं अपनी मिरेकुलस पावर्स, नो लिसन, रिलीव पीपल फ्रॉम इलनेस एंड ट्रबल्स, लोगों को इलनेस एंड ट्रबल से निकालने के लिए, उससे निकालने के लिए ये लोग अपनी मिरेकुलस पावर्स यूज करते हैं। टॉम्ब और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, जैसे अभी मैंने बोला है, मुराद शाह की दरगाह आप वहां जाते हो तो वो एक पिलग्रिमेज सेंटर बन चुका है, लोग वहां माथा टेकने जाते हैं, ठीक है। सेम एज, तो वही मैं बोल रही हूँ, टॉम्ब और दरगाह ऑफ सूफी सेंट्स बिकेम अ प्लेस ऑफ, क्या बन चुकी है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स केम। वहां पे हर फेथ के, हर क्या नकोदर जो मुराशा की दरगाह है जहाँ पे, वहां पे हर रिलीजन के लोग जाते हैं, सिख भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं। तो हर तरह के लोग इन पिलग्रिमेज में माथा टेकने जाते हैं। अभी मैंने जितना बताया पहले उतना कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने किए नाथ पंथ, सिद्धास एंड योगिस, उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। सूफी सेंट्स भी आपने सेम ही किया कि उन्हीं के व्यूज को लेके चलते थे, बस इन्होंने इतना याद रखो कि इन्होंने मेथड्स अपने जो बताए वो थे ब्रीदिंग कंट्रोल, और क्या बताया इन्होंने, जिक्र, और साथ में इन्होंने और क्या बताया, डांसिंग, सिंगिंग, और कहा कि गाइडेंस के अंडर हो। फिर इनके सूफी जो मास्टर्स थे वो अपनी असेंबलीज कहाँ पे करते थे, खनकास में, और किस बात के लिए, स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस होते थे, अटेंडेड बाय पीपल ऑफ ऑल, कह दो के ऑल क्लास, हर तरह के लोग होते थे वहां पे। और ये कई बार लोगों ने, कई बार ये लोग अपनी मिरेकुलस पावर्स यूज करते हैं टू रिलीव पीपल फ्रॉम इलनेस और वर्ल्डली ट्रबल। किसी को वर्ल्डली ट्रबल हो तो ये लोग उससे भी उसको ठीक करते हैं अपनी मिरेकुलस पावर्स के साथ। तो मीन्स हमने पहले सेंट्स के बारे में पढ़ा, आपने भास्वन, आपने रामानुज, शंकराचार्य, ये सब सेंट्स के बारे में पढ़ा। आज आपने सूफीज के बारे में पढ़ा, कवालीज गाते हैं थ्रू डांसिंग, ये अपने गॉड को याद करते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। मुस्लिम्स के बारे में पढ़ा, पहले आपने हिंदूज के बारे में पढ़ा था, अब आपने आज मुस्लिम्स के बारे में पढ़ा। आप दरगाह और टॉम्ब क्या है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, एंड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन विजिट दीज टॉम्ब और दरगाह, हर तरह के, हर रिलीजन के लोग वहां माथा टेकने जाते हैं। सो आज आपको क्या करना है, आपको you have to solve the questions related to these topics, such as with, not all, because chapter अभी पढ़ा हमारा, तो up till page number 112 क्वेश्चंस विच आर लिंक टू पेज नंबर 112 तक जितने इस लेसन के आपके क्वेश्चंस इससे लिंक्ड आते हैं ना,
you have to solve those questions. ठीक है, try to solve. We will discuss again in the, मैं करवाऊंगी क्लास में, first of all lesson complete हो जाए, then we will discuss the question answers also, but try to solve. try तो करो ना, try to solve. एक मिनट आप कर लोगे? आपको मैं बोलूं write note on नाथपंथी सिद्धास and yogis, you can write. Right? No, who was Narsi Mehta? Who was Narsi Mehta? You can write. Saint of Gujarat. अगर मैं पूछूं, वेरी गुड वेरी गुड, अगर मैं पूछूं कि आप बताओ भासवन के बारे में, भासवन क्या स्टार्ट किया था? ही एडवोकेटेड, बताओ, विराश्वइज्म, याद आ गया? हु एडवोकेटेड अद्वैता? शंकराचार्य. हु एडवोकेटेड वशिष्ठ अद्वैता? तो आपको आते हैं, यही तो क्वेश्चन, आप ट्राई तो करो ना. ठीक है, जो भी इससे, हाँ एक्सरसाइजेस, जो भी इससे ट्रू फॉल्स, जो भी मैच है ना, जो भी इससे आपके इससे लिंक्ड है ना, जितना हमने किया, ट्राई टू सॉल्व. अभी हम पूरा चैप्टर करेंगे, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. बट आपको मैंने देखा जितना हमने किया आपको आता है ना. तो आप बताओ, अगर मैं पूछूं नेम फ्यू सूफी सेंट्स. वेरी गुड, रूमी, सादी एंड गजाली. वेरी गुड. तो सूफीज जो थे, हु वर सूफीज? मुस्लिम मिस्टिक्स, मुस्लिम. वेरी गुड. तो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बाद में हम डिस्कस करेंगे. अब जो बाकी चैप्टर है आज नहीं मैं करवाऊंगी, हमने अभी तक सेंट्स एंड सूफीज तक कर लिया. तो स्टूडेंट्स टेक रीडिंग आल्सो.